عمل ہے. اس طاقتور عمل کو طاقتور یقین کے ساتھ کرنا ہے. اس طاقتور عمل کو طاقتور جذبے کے ساتھ کرنا ہے. اس طاقتور عمل کو طاقتور خلوص کے ساتھ کرنا ہے. یہ بات ذہن نشین رہے. اس طاقتور عمل کو طاقتور جذبے کے ساتھ کرنا ہے, طاقتور خلوص کے ساتھ کرنا ہے. کائنات تو رازوں میں موجود ہے. ساری دنیا بڑی مشکل سے محنت کرتے کرتے ساری دنیا بڑی مشکل سے محنت کرتے کرتے ان کہکشاؤں پہ پہنچی, گلیکسیز پہ پہنچی. اللہ کے ولیوں نے پہلے سے یہ نظام بتا دیے تھے. حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ ایک درویش تھے. بادشاہ کے ملازمین ایک راستہ تلاش کر رہے تھے اپنی سمتوں کے مطابق, اس دور کے آلات کو سامنے رکھ کے. 2 دن سے کھپ رہے تھے, نہیں مل رہا تھا. آپ پانی کا پیالہ بھر کے لے آئے اور پیالے میں کنکر ڈالے, اس سے لہریں پیدا ہوئیں. آپ نے فرمایا تم یہ چیز تلاش کر رہے ہو؟ ہاں. دیہاتی آدمی, ہل چلانے والے بظاہر, ان کی نظر میں تو کچھ نہیں, ان کی نظر میں تو کچھ نہیں. دیہاتی ہل چلانے والے, ان کی نظر میں کچھ نہیں. تو بادشاہ کو جا کے, انگریز کو, افسر کو جا کے کہا, کمشنر کو, کہ ایسے ایسے ہے, ہم اتنے دنوں سے کھپ رہے تھے, ہمیں کوئی راستہ ہی نہ ملا. ایک پل کے اندر اس نے راستہ دے دیا. جب نئی نئی ریل کی پٹڑی بچھائی جا رہی تھی اور سڑکیں نکالی رہی تھیں اور نیا نہری نظام بنایا جا رہا تھا, انہوں نے کہا اس بابے کو لے آؤ. بابا جی کو لے آئے تو بابا جی کنویں پہ 2 بیل اور کنویں سے پانی نکل رہا اور پانی فصل کو لگ رہا, زمین کو لگ رہا. تو بابا جی کہنے لگے کہ یہ پانی زمین کو جو لگ رہا تو میرا تو یہ ختم ہو جائے گا, تمہیں طلب ہے تو خود آ جاؤ, اس کو کہو میں نہیں جاتا. تو اس کو غصہ آیا. انہوں نے جا کے کہا کہ بابا جی کہتے میں نہیں آتا. تو افسر کو غصہ آیا, اس نے کہا گرفتار کر کے لے آؤ. اس نے ایک سپاہیوں کا دستہ بھیجا. آپ کو پتا چلا کہ سپاہیوں کا دستہ آ رہا اور مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہا. آپ نے ایک ٹھیکری اٹھائی, اس پہ کچھ انگلی سے لکھا, مٹی کے ڈھیلے سے لکھا, لکھ کے وہ ٹھیکری پانی میں ڈال دی. کس میں ڈالی؟ یہ پانی کے راز ہی نکل رہے ہیں ابھی. جو بھی پانی کا ڈول بھر بھر کے آ رہا تھا, ہر ڈور میں ایک سپاہی آ رہا تھا. وہ سپاہی آتے گئے, کھڑے ہوتے گئے, مسلح سپاہی کھڑے ہوتے گئے. وہ جو آئے دیکھا اتنی بڑی فوج کھڑی ہے, بابا تو کہیں سے فوج بلا کے لے آئے. بھاگ گئے, انہیں ہم اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ادھر وہ گئے اور ادھر وہ ہر ڈول کے ساتھ پھر جانا شروع ہو گئے, واپس جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے. حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی النبراس ان کی کتاب, اور ان کے اوپر اب تک 3 افراد سے زیادہ لوگوں نے ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہے. 32 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. 300 کے قریب لدنی وہبی غیبی علوم ان کے پاس تھے. دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے اور 32 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. یہ کہاں کے راز ہیں؟ ٹھیکری اٹھا کے اس پہ لکھا اور کنویں میں ڈال دی, اور کنویں سے سپاہی نکلنا شروع ہو گئے. ہم تو رازوں کو بھول گئے, ہم رازوں کی دنیا بھول گئے, ہم راز بھول گئے, ہم رازوں کی دنیا بھول گئے, ہم رازوں کے راز بھول گئے, ہم کائنات کے راز بھول گئے. اور اگر کوئی یاد دلاتا بھی ہے, نا واقفیت کی بنیاد پہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یہ کائنات ہے کیا, سمجھ میں بھی نہیں آتی.
अकल में नहीं आती। ये पानी वाला नक्श, ये पानी वाला तावीज, दुनिया की कोई मुश्किल से मुश्किल हाजत है, दुनिया की कोई मुश्किल से मुश्किल परेशानी है, दुनिया की कोई नामुमकिन से नामुमकिन चाहत है, मुराद है, अल्लाह पूरी करता है। किसी की देर हो जाए तो समझ ले तेरी मांगने में कमी, तेरी तलब में कमी, तेरी तड़प में कमी, तेरे जज्बे में कमी, या फिर कुदरत कामला तुझे यह चीज नहीं, इससे कोई बेहतर नहीं, बेहतरीन चीज देना चाहती है। बेहतर नहीं, हाँ, बाज़ औक़ात बंदा कहता है अल्लाह तू सच्चा, तेरे फैसले सच्चे, पता नहीं मैं वो मांग लेता तो आज ये होता, या अल्लाह तूने उससे बेहतर अता फरमाया। इस तावीज से मिलता है, इस तावीज से लोग पाते हैं। कहने लगा मुझे ख्वाब में आके ना एक बंदे ने कहा, बाबा फरीद ने फरमाया, शेख मसूद ने, उनका नाम मसूद था, बाबा फरीद ने फरमाया तुम्हें पता है कि बड़े बड़े औलिया सालिहीन बुजुर्ग दरियाओं के किनारे क्यों रहते हैं? कहा जहां पानी जिंदगी है वहां दरियाओं के अंदर बैठ के चिल्ले होते थे और वहां दरियाओं में तावीज भी डाले जाते थे, और बू अली कलंदर ने दरियाओं के अंदर खड़े होकर चिल्ले काटे थे। दरियाओं के किनारे, ये हजरत अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब और बाबा फरीद शकरगंज देख लें, दरियाओं के किनारे, उच्च शरीफ सारा दरियाओं के किनारे, दिल्ली सारा दरियाओं के किनारे, लाहौर सारा दरियाओं के किनारे, जिंदगी दरियाओं के किनारे, पानी जरूरत जिंदगी। वहां पानी के साथ जिंदगी के और निजाम भी थे, उनमें एक निजाम मैं जो बताए जा रहा हूं इस तावीज का और नक्श का, और एक निजाम जो मैंने आपको बताया ठीकरी का। हजरत पिरहारवी ने फरमाया कि जो बंदा अस्तंजा करते हुए सिर्फ 7 कहेगा, असल है सबा, अरबी में 7 को क्या कहते हैं? सबा कहते हैं ना, सबा। जो 7 कहते हुए दिल ही दिल में, जुबान से नहीं दिल ही दिल में अस्तंजा करते हुए 7 कहेगा, उसे अस्तंजे की सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। और जिसको बताया फायदा, अब अस्तंजे की कितनी बीमारियां हैं गिनना शुरू कर दो। फिस्टोला है, भिगंदर है, नवासीर है, बवासीर है, कब्ज है, और पीप है, और दाने हैं, और एलर्जी है, और पता नहीं कितनी 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 बीमारियां, कितनी बीमारी। क्या बताऊं मैं आप, पता मुझे भी नहीं, बताऊं तो उस वक्त मुझे पता हो, पता मुझे भी नहीं तो आपको क्या बताऊं। एक साहब थे, तकरीर करने आए, उन्होंने कहा जी उस दौर में 5000 लूंगा मैं, 5000 लूंगा। 5000, उन्होंने कहा बंदा बड़ा जबरदस्त है, ऐसी तकरीर करता है दलाइल के साथ। तो मैंने कहा इकट्ठे करेंगे, देंगे। उसका नाम था कयामत खान। नाम बड़ा ताकतवर, अजीब है, कयामत खान उसका नाम है। मजमा आया, शोर हुआ, नारे हुए, कयामत खान आ गया। हम बैठ जाओ, इल्मी गुफ्तगू की आज, हम बगैर इल्म के गुफ्तगू नहीं करेंगे। बड़ा बड़ा अजीब बात है, 5000 लिए हैं, ऐसे तो नहीं। जहां 5 रुपए माहाना तनख्वाह होती थी और बड़े आदमी की किसी की, तो 5000 उसने लिए। इल्मी गुफ्तगू की बगैर दलील के नहीं होगी, दलील के साथ होगी। लोगों ये बताओ जिब्रील किसे कहते हैं? उसने कहा जी जिब्रील फरिश्ता है। लोगों ये बताओ खाता क्या है, पीता क्या है, रहता कहां है? ये आप बता दें। उन्हें तो पता ही नहीं, मुझे क्यों बुलाया था? चल गया, चल गया। ये बड़ी अजीब बात है। उन्हें कहा फिर बुलाया, उन्हें कहा फिर 5000 लूंगा। उन्हें कहा बंदा इल्मी है,
फिर बुलाया, उन्होंने कहा जिब्रील किसे कहते हैं, खाता क्या है? उन्होंने कहा नूर खाता है। उन्होंने कहा पीता क्या है? उन्होंने कहा नूर पीता है। उन्होंने कहा रहता क्या है? उन्होंने कहा अर्श पर रहता है। कहा पता था, फिर मुझे क्यों बुलाया? गया। जब पता ही था फिर मुझे क्यों बुलाया? बंदा 5,000 फिर ले गया। बाबे को लिहाजा उठा दो। उन्होंने कहा जिब्रील, बाबा जी जिब्रील का फैसला हो गया। बाबा खुद फराक में था। वाह बाबा जिंदाबाद, बुढ़िया को पता नहीं अंदर क्यों आ दिए। हम तो सुना था कि बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है, पर मेरे तजर्बे उलट निकल रहे हैं। मैंने तो समझा था कि बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है, मेरे तजर्बे को उलट निकल रहे हैं। अल्लाह वालो, इंसानियत दुखी है, इंसानियत परेशान है। लोग हालात के मारे हुए हैं, लोग हालात के मारे हुए हैं। इन लोगों को मुख्तसर चीजें दें और वो सीने के राज दें, वो सीने के राज दें, वो सीने के राज दें जो अमूमी सामने नहीं आए और छुपे छुपाए चले गए सीनों में, या किसी ने उसको इजहार करके किताब में कलम बंद कर दिया, वरना अक्सर सीनों में चले गए, छुपे छुपाए चले गए। वो सीने के राज अल्लाह की मखलूक के सामने करें। क्या होगा? लोग अल्लाह उसकी जात से जुड़ेंगे, लोग अल्लाह उसके नाम से जुड़ेंगे, लोग अल्लाह उनकी राहों से जुड़ेंगे। अगर ना दिया फिर ये दुखियारा कहां जाएगा? आप खुद सोच लें। फिर याद रख, तेरी हाय वाय से और तेरे हराम हलाल और तेरे हराम हलाल से हला कुल्लु मिनल शिर्क, ये वो नहीं सुनता। तू जितनी कहना है कहता रहे, तूने जितना कहना है कहता रहे। क्यों? गरजमंद दीवाना होता है, और दीवाने को कोई समझ आती नहीं, पागल को क्या समझ आए। हमारे यहां एक खातून थी, तो उसकी बच्ची थी, मुझे याद है, मेरी उम्र से बड़ी थी, बेचारी धूप में बैठी रहती, दीवानी थी। घर वालों को याद आता था कि वो धूप में बैठी हुई है। सहन होता था, गर्मी में चारपाइयां बाहर निकलते थे, सहन में बेचारी को सुलाते थे, घर वाले अंदर होते थे, वो धूप में बैठी हुई चुप करके। मैंने खुद देखा, धूप सख्त गर्मी चुप करके बैठी हुई, दीवानी। उसे पढ़ा है, किसी चीज को क्या पता उसका। तो गरजमंद तो दीवाना होता है, फिर वो ये नहीं देखता हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है, शिर्क है या बिदअत है। अल्लाह की मखलूक को ये चीजें दे दें जिन चीजों से अल्लाह की मखलूक को खैर मिले, राहत मिले, उनके मसाइल हल हों, उनकी मुश्किलें दूर हों। यह राहत का सामान, यह आफियत का सामान ये मिले। क्यों फरमाते हैं कि बारिश के दौरान दुआ मांगी जाए कबूल होती है? क्यों फरमाते हैं बारिश का पानी सेहत है? क्यों फरमाते हैं जितने भी लोग विलायत के मनाजिल, गौर से सुनना इस फिक्रे को जरा, जितने भी लोग विलायत के मनाजिल तय करते हैं वो कभी भी अपने सालिक को पानी कुछ नहीं पिलाते, या जमजम पिलाते हैं या बारिश का पानी पिलाते हैं। जितने भी लोग अल्लाह वाले वली जो विलायत की मनाजिल तय करवाते हैं, रूह की मनाजिल तय करवाते हैं, रूहानियत के दराजात तय करवाते हैं, जितने भी, तो वो दो में से एक पानी पिलाते हैं। क्योंकि जमजम हर जगह मयस्सर नहीं है, तो अब मयस्सर हुआ कि हमारी दुकानों पे जमजम की केनें बिकने लगी। जमजम हर जगह मयस्सर नहीं। बारिश का पानी पिलाते थे, बारिश के पानी में दलिया दाल खाना, और बारिश के पानी में गुंदा हुआ आटा। ऐसे नहीं है। हत्ता के यहां तक फरमाया कि अगर तावीज भी लिखो जर्दे के रंग में, सियाही में या जाफरान में, तो उसमें जमजम का पानी डालो या बारिश का पानी डालो, मजबूरन और पानी भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, और पानी भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जिंदगी में अल्लाह ने मुख्तसर जिंदगी रखी है, ऐसे मुबारक नक्श, ऐसे मुबारक अमल उसके जरिए
खुद भी जिंदगी में बेहतरीन जी जाएं और लोगों को भी बेहतरीन जीने के मौके दें। खुद भी जी जाएं और लोगों को जीने के मौके दें। लोगों को जीने के मौके दें, लोगों को राहत फैलाएं, आसानियां फैलाएं। मुट्ठियां भर भर के ना फूलों की पत्तियां फेंकें, कंकर ना फेंकें। हमारे कॉलेज में ना एक बंदे को लीडर बनने का बड़ा शौक था। कुदरत का निजाम मुझे पिछले साल मिला, लीडर बन ना सका। पिछले साल जो मिला तो मेरा से उसका टाकरा हुआ था 87 में, 87 में, और वो मिला मुझे गालिबन 21 या 22 में। कितने सालों के बाद? 87 से 21 साल, 21 में 35 साल। तो 35 साल के बाद मिला, लीडर ना बन सका। वो क्या करता था? कापियों के कागज फड़वाता था, बारीक बारीक छोटे छोटे फड़वा के खुद ऐसे करके चलता था। कहते कागज छोटे मेरे ऊपर फेंको, ऐसे जैसे फूल फेंकते, कागज के ना चूरा, कागज का टुकड़े छोटे छोटे ऐसे, कहते मुझे ऊपर फेंको कि मेरे तेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। फिर वो फेंकते थे, फिर वो खुश होता था। अब वो लीडर ना बन सका बेचारा। देखें, इंसानियत को फूल दें, राहत दें। इंसानियत को कंकर न फेंकें, उनको राहत दें, राहत। दुख हैं लोग, बहुत दुखी हैं। माल है तो दुखी हैं, नहीं है तो दुखी हैं। औलाद है तो दुखी हैं, नहीं है तो दुखी हैं। घर है तो दुखी है, नहीं है तो दुखी है। और दौलत ओहदा है तो दुखी हैं। कोई किस्मत वाले, मुकद्दर वाले, नसीब वाले हैं और हमेशा होंगे, जिनको अल्लाह ने दुनिया में भी जन्नत के मजे दिए हैं, जन्नत की लज्जतें दी, और वो दुखी नहीं है। होंगे और हर दौर में होंगे। ये छोटी छोटी चीजें आप खुद सोचें। दरियाए नील का जो नक्श है, दरियाए नील का जो नक्श रिसाले में छपता रहा, बस लिखना ही तो है। और इधर लिखा नहीं, इधर अमल किया नहीं, इधर निजाम कुदरत हरकत में आया नहीं। हमारे दरियाए नील का नक्श और क्या 22 जमादी सानी, 22 जमादी सानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। और हर साल की जमादी 22, हर साल हर इस्लामी महीने की 22 को वो नक्श लिखा, लिख के पानी में घोला, और घोलने के बाद आटे में डाला और परिंदों को दिया। इधर परिंदों ने खाया और इधर क्या हुआ? इधर ठिकरी गई, इधर हर डोल के अंदर फौजी सिपाही निकलता गया। दरिया नील का नक्श यही है जो हमारे रिसाले में छपा। हर महीने की 22 तारीख का नक्श यही है। और ये जो नक्श है वो भी इसी की ताकत है। ये नक्श वही है, बस लिखा कि मौला मैं तेरा जलील बंदा हूं, तू रब्बे जलील है। अब नक्श के अल्फाज पे गौर करें, उसके मजमून को देखें। अपनी हैसियत को मिटा देना, कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, ये हैसियत मिटा दी, हैसियत मिटा दी, हैसियत मिटा दी। और अल्लाह को कहा कि मौला तो रब्बे जलील है, मैं अब्द जलील हूं, मैं तेरा एक जलील कमजोर कम तर बंदा हूं। अच्छा, फिर इसमें ना एक दुआ है, रब्बी इन्नी मस्सनी ज़ुर्र है, इसमें है, आप इस पे गौर करें। वो क्यों है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लंबी बीमारी काटी, सब छोड़ गए, सिर्फ बीवी साथ थी, और अल्लाह ने सब चीजों को मौत दे दी। बड़ों की आजमाइश बढ़ी, हर चीज खत्म हो गई। मैं वहां गया, एक दफा से ज्यादा बार गया। तुर्की में शाम के बॉर्डर पे वो जगह है, कुआं है, वो गार है। अल्लाह पाक ने फिर जो सेहत दी है वो पानी से दी है। अल्लाह ने जो सेहत दी है वो पानी से दी है। भाई जिम्मेदार हजरात चेक करें कि एग्जॉस्ट उल्टे चक्कर तो नहीं चला रहे। लाइट जाने के बाद एग्जॉस्टों के उल्टे चक्कर चलते हैं, कोई जिम्मेदार है?
حال میں حبس محسوس ہو رہی ہے، ایگزاسٹ چل بھی رہے ہیں، ہوا نہیں کھینچ رہے. یہ ذمہ داروں کو چاہیے تھا ان چیزوں پہ نظر رکھیں. میں مضامین بھی بیٹھا جوڑ رہا ہوں اور تمہارے ایگزاسٹ بھی چلوا رہا ہوں، سپیکر بھی چلوا رہا ہوں. سدا جی میں تے لکھ تھی میں جیندا رہے جیند جی میں تے کو دیکھا تے ٹھراں بیٹھا. واہ جوان واہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ذمہ داروں کی. اس تعویذ کو لکھیں، یقین کی دولت کے ساتھ لکھیں اور جذبوں کے ساتھ لکھیں. اللہ کا نام لکھ رہے ہیں نا، اللہ کو درخواست لکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لکھ رہے ہیں اور اللہ کو درخواست لکھ رہے. اب لگتا ہے سیدھے ہو گئے یا اعزاز بند تھے. کیوں جی ہے حال میں سکھ دسا آیا ہے، سکھ دسا. یہ تو ذمہ داروں کو چاہیے، جو ذمہ دار ہیں وہ اس چیزوں کو سنبھالیں، ہر وقت نظر رکھیں. اللہ کریں، سچ پوچھیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سمجھ میں نہیں آتی، دلی میں بارش نہیں ہو رہی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے فرمایا جاؤ دلی کی طوائفوں سے کہو دعا کریں بارش ہو. اور نماز استسقاء پڑھی. ایک دن سارے بزرگ کٹھے ہو کے جنگل میں رو رو کے مانگی دعا. 2 دن 3 دن کے بعد حکم ہے فیصلے اس پہ چھوڑ دو، کریم پہ. اور میں جاؤ ان سے کہو ہمارے لیے دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی. قحط پڑ گیا، جانور تو جانور، انسان مرنے لگے. جب وہ گئیں بوڑھے بوڑھے اکٹھے کر کے بہت سارے بھیجے، ایک پوری ٹیم بنا کے جماعت بنا کے ان کے پاس بھیجی تو وہ روتی ہوئی اٹھی اور منگے کپڑے پہنے. کہ ہمارے تو کپڑے بھی حلال نہیں ہیں. نہائیں، پھر روتی ہوئی دلی کے اطراف میں نکلی اور ایسی جگہ جہاں جنگل، اور پھر اللہ سے خوب رو رو کے مانگا اور یوں رو کے مانگا اور یوں بارش ہوئی. وہ اس کے راز ہیں، وہ اس کے راز ہیں. کوئی نہ پہنچے اس کے رازوں کو، کون پہنچ سکتا ہے؟ اس کا نظام ہے، کوئی نہ پہنچے اس کے نظام کو، کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ اس کی ترتیب ہے، وہ جانے اس کی ترتیب جانے. انسان اپنی عقل سے کس چیز کو سمجھے گا؟ انسان اپنے شعور احساس سے کس چیز کو سمجھے گا؟ اپنی عقل سے، اپنے احساس سے، اپنے شعور سے کس چیز کو سمجھے گا؟ نہیں سمجھ سکتا. ایک دیہاتی تھا، ریڈیو آئی نئی، اس نے گدھے کے گلے میں ریڈیو باندھی ہوئی تھی، خود اس پہ بیٹھا ہوا تھا اور ریڈیو چل رہی تھی. کسی نے پوچھا چاچا یہ اندر کون ہے؟ کہا بندے ہیں بیٹا. دیکھا میں نے بھی نہیں ہے پر بندے بول رہے ہیں، اندر بندے ہیں. میں نا اماں رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گیا. ایک ہماری ساتھ پڑوس میں ماسی تھی، فوت ہو گئی. ماسی عید کے دن پیدا ہوئی ہوگی تو عیدو کہتے تھے. بڑی نیک درویش سفید پوش لوگ، انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے. بچے نئے نئے ٹی وی لے آئے. میں اماں کے ساتھ گیا تو اماں کہ ابے طارق ہائے. میں کہ اب جی ماسی کیا؟ ابے ان کو چھڑوا دو. وہ ریسلنگ ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو کٹی ماری ہو رہی تھی نا، وہ ریسلنگ ہو رہی تھی. بے طارق ابا ان چھڑوا دے. میں کہ ماسی یہ نہیں چھوڑتے. ارے منت کر کے چھڑوا دے ان کو. ارے مار دیں گے اس کو، چھوڑا مار دیں گے اس کو، چھڑوا دے طارق چھڑوا دے. مائی کرے زاریاں، اب طارق کیسے چھڑوائے ان کو؟ آج بھی مجھے اللہ پاک جنت عطا فرمائے اس کی یاد ہے بات. وہ زاریاں کرے کس طرح تو چھڑوا دیں ان کو، یہ مار دیں گے.
اور بچے خوش ہو کے دیکھ رہے, ان کے بچے کہہ رہے اما یہ ایسے نہ ہے, یہ باہر سے آ رہی ہے. انہوں نے کہا بیٹا اس کو چھڑوا دے. ارے کچھ نظام بن دیکھے مانے جاتے ہیں. اللہ کے بندو, کچھ نظام بن دیکھے مانے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہر چیز عقل میں آ جائے, شعور میں آ جائے. مجھے سارے اس حال میں آکسیجن دکھا دو. ابھی ایک پل کے اندر ایگزاسٹ تھوڑے سے کم و بیشی ہوئی تھی, کاربن بھر گئی تھی, اور کاربن جتنی بڑھتی جائے گی دم گھٹتا جائے گا. بڑھ گئی تھی. اور مجھے کاربن زیادہ کیوں محسوس ہوئی؟ کاربن گرم ہوا ہمیشہ اوپر اٹھتی ہے, میں اوپر بیٹھا ہوں, آپ کو کم محسوس ہوگی. گرم ہوا ہمیشہ اوپر اٹھتی ہے, ٹھنڈی ہوا نیچے آتی ہے. کوئی بندہ مجھے دکھا دے اس حال کے اندر آکسیجن یہ جا رہی ہے, کاربن یہ جا رہی ہے. کوئی مجھے آپ میں سے کوئی بندہ ایک دکھا دے کہ میرا موبائل کا یہ نیٹ ورک ہے, یہ ٹیلی نار کا ہے, یہ زونگ کا ہے, یہ یو کا ہے, یہ وارد کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ کالی لائن جو جاری لہر یہ فلاں کی ہے. کوئی دکھا دے. نظر نہیں آتا نظام, پر ہے. سیب کے اندر آئرن ہے, کیلشیم ہے, فاسفورس ہے, فلاں ہے. گاجر کے اندر یہ ہے, نظر تو کوئی نہیں آتا اس کے اندر, وہ تو سارا پانی اور بھوگ ہے, پر ہے. کہتے ہیں یہ مرض ہے اس بندے کو, بڑا گوشت نہ کھلاؤ, اس کو وائٹ میٹ کھلاؤ, مچھلی کا گوشت کھلاؤ یا دیسی مرغی کھلاؤ, یہ نہ کھلاؤ اس کو ریڈ میٹ, سرخ گوشت نہ کھلاؤ, وہ بکرے کا, وہ گائے بھینس کا, وہ فلاں کا. اور کہا اگر کھلانا ہے تو اونٹ کا کھلانا. اونٹ کا گوشت ساری بیماریوں سے پاک ہوتا ہے, اور اونٹ کے گوشت سے یوریک ایسڈ نہیں بنتا, اور اونٹ کے گوشت سے گردے فیل نہیں ہوتے, اور اونٹ کے گوشت سے ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوتا, اور اونٹ کے گوشت سے تمہارا جسم موٹا نہیں ہوگا, پھولے گا نہیں. یہ کھلا دینا. اس میں تو نظر نہیں آتا, گوشت تو ایک ہی طرح کٹا ہوا ہوتا ہے. میں نے اونٹ کی قربانی ابھی کی, جانوروں کی, گوشت تو ایک ہی طرح ہوتا ہے. کچھ دنیا بن دیکھے بھی ہوتی ہے. انگریز کی بات کو اتنا یقین سے مانے, اور جن کے سامنے کائنات کے راز کھلے ہیں, انبیاء, صحابہ, اہل البیت, اولیاء صالحین, بزرگ, ان کے سامنے کائنات کے راز کھلے ہیں, ان کی بات کو تجھے سمجھ نہ ہے. میں گیا دمشق کی اموی مسجد میں, فرمایا اموی مسجد میں طلسمات تھے, راز تھے, ایسی چیزیں لگائی ہوئی تھی کیڑا کبھی نہیں اندر داخل ہوگا. وہاں کے طلسمات اور راز, ایسی چیز لگائی ہوئی تھی سانپ کبھی نہیں آئے گا اس مسجد کے اندر. ایسی چیزیں لگائی ہوئی تھی چونٹیاں نہیں آئیں گے, ایسی چیزیں لگائی ہوئی تھی دیمک نہیں آئے گی. وہاں کائنات کے راز اس دمشق کی اموی مسجد کے اندر راز لگائے ہوئے. یہ چیز اندر داخل نہیں ہوں گی, نمازیوں کو آ کے نہیں ستائیں گی, نہیں کاٹیں گی. سمجھ نہیں آتی, عقل نہیں مانتی. رازوں پہ غور کریں, اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے, اللہ ہمارے دل کی دنیا کھول دے. میں نے تقریباً 17 سال سے زیادہ ایک دعا پڑھی ہے. ہاں کیا؟ یا علیم علمنی, اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما. یا خبیر اخبرنی, اپنی خبروں سے خبر عطا فرما. یا وہاب حبلی, اپنی عطا سے عطا دے دے. من اسرار دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کے سارے راز مجھ پہ کھول. میں نہیں کہتا کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں کہاں پہنچ جاتا ہوں. یہ علم ہے, اللہ سے مانگیں. اس لیے فرمایا اللہ سے 2 چیزیں مانگیں. جہاں ساری چیزیں مانگے میں 2 چیزیں مانگے. اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما, اپنے حلم سے حلم عطا فرما. یہ اللہ کے علم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, جو اللہ کے نیک بندوں پہ یہ علم کھلے ہیں. یہ میں وہ بیان کر رہا ہوں, جو اللہ کے نیک بندوں پہ علم کھلے ہیں, میں وہ بیان کر رہا ہوں. اور ان کے سینے اس علم سے وسیع ہوئے ہیں, میں وہ بیان کر رہا ہوں. وہ ڈول لاؤ بھائی.
میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو وہ ڈول دکھانا ہے جو صحراؤں میں یہ دیکھیں، یہ اس میں پانی بھرتا ہے، اس کا اوپر چمڑا اٹھاؤ نا جہاں سے پانی آئی، میرے چاند، آپ سمجھ آئی؟ اس میں پانی بھرتا ہے، یہ کنویں کے اندر جاتا ہے، یہ دیکھیں اس کو جگہ جگہ پیمن دیکھیں، یہ اندر بھرتا ہے، مجھے دکھائیں گا اس کا وہ حصہ رسی والا اوپر والا حصہ دکھائیں، یہ دیکھیں، یہ صحراؤں میں جاتا ہوں، یہ صحراؤں میں یہ ڈول پانی کا بھرتا ہے، اب یہ اتنا بڑا ڈول ہے کہ اس میں بندہ آ جائے، اس پانی کو کھینچ کے کون لائے؟ ادھر سے رسی ہوتی ہے، بڑا رسا ہوتا ہے دور تک، پھر اونٹ اس کو کھینچتا ہے، اوپر جب آتا ہے تو ایک خاص آواز دیتا ہے، اس بندے کو جو اونٹ لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، یہ ڈول کو ایک حوض بنا ہوتا ہے، اور حوض بھی سیمنٹ کا نہیں، چونے کا، جس کو بڑی بڑی ہلٹیاں اور چھینیاں نہیں توڑ سکتی، اس میں حوض، اور آگے پھر جانور پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، میں آپ کو صحرائی ڈول دکھاؤں گا، یہ ڈول بھر کے آیا، یہ دیکھیں اتنا بڑا ڈول ہے، دیکھا آپ نے ڈول؟ اتنا بڑا ڈول، یہ کیوں کہا تھا میں نے دکھایا؟ بتائیں کس وجہ سے دکھانا تھا میں نے؟ کیا بات چلی تھی بتائیں؟ میں نے کہا تھا کہ جو اس کنویں میں پانی میں، دریا سمندر میں، نہر میں، بہتے چلتے پانی میں یہ نقش پھینکے گا، اللہ ایسے رزق کے، دولت کے، خزانوں کے ڈول بھرے بھرے عطا فرمائے۔ شیخ موسیٰ آہن گھر، لاہور ہوٹل، آپ کے لاہور میں ان کا مزار ہے، ملتان کے تھے، ان کے کرامات میں بہت سی کرامات ہیں، ایک کرامات یہ بھی ہے، یہ لوہار تھے، آہن گر لوہار تھے، آہن گر، آہن گر۔ یہ ہتھوڑا جب لوہا گرم ہوتا ہے، لوہار کا مقصد ہوتا ہے جلدی جلدی اس پہ ہتھوڑے مار کے جو چیز بنانی ہے بنا لیں کہ لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسے تو لوہا گرم تھا، ہتھوڑے مار رہے تھے، ادھر سے اذان کی آواز آئی، یہ ہتھوڑے مارتے رہے، اور حالانکہ اس سے پہلے جب اللہ اکبر ہوتا تھا ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتے تھے، کہتے تھے لوہے کو پھر گرم کر لیں گے، اور اس کو بٹھی میں رکھ دیتے تھے۔ اس دفعہ کہنے لگے کہ ہتھوڑے مارے کہ اذان ہوئی ہے، میں پہنچ جاؤں گا، اور وہ چیز بنا لی، تلوار تھی، کلہاڑی تھی، جو بھی چیز بنانی تھی بنا لی۔ جب جا کے وضو کے لیے ڈول کھینچا تو ڈول بھاری تھا، ڈول بھاری تھا، بھاری تھا، حیران ہوئے۔ جب ڈول کو نیچے پھینکا، جواہرات، سونے، لال، جورد، ہیرے، یاقوت سے ڈول گرا، اور یہ حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ آواز آئی، اسی مال کے لیے ہمارے نام کو پیچھے کیا تھا، پھر ٹھیک ہے ہمیں نالے، مال لے لے۔ مجھے اس دن چلتے ہوئے ایک بندے نے آواز دی، دعا فرمائیں، اللہ نے مجھ سے لقمے نہیں چھینے، سجدے چھین لیے ہیں، لقمے نہیں چھینے، سجدے چھین لیے۔ پھر یہ رزق کے ڈول بھر بھر کے آتے ہیں اس نقش کی برکت سے۔ دیکھا کتنا بڑا ڈول ہے، ایک من سے زیادہ، کئی من سے زیادہ پانی، کئی گیلن اور کئی لیٹر پانی اس کے اندر آتا ہے، اس کو چلتا ہوا آپ دیکھیں۔ ہمارے ہاں ویڈیو پڑی ہیں، میں اپنے ذمہ داروں سے کہوں گا اس کی ویڈیو پڑی ہیں ہمارے پاس، بلکہ نیٹ پہ آئی بھی ہوئی ہیں، ڈالی بھی ہیں، وہ اٹھا کے دوبارہ ڈالیں، اس ڈول کو نکالتے ہوئے پورا منظر ہے، جو میں وہاں موجود ہوں، پورا منظر ہے،
ऐसे आवाज निकालते हैं, डोल आता है। वो कितनी भी वीडियो हैं, सर्च करके हमारी टीम बैठी है, तो इंशाल्लाह वो आपको ये वीडियो दिखाएगी, आप वीडियो देखिएगा। ये डोल भरता कैसे है, जाता कैसे है, पिलाते कैसे हैं, होता कैसे। अल्लाह के खजानों से मनवा लें। कुछ मेरे लिए भी नक्श लिख दें, कुछ मेरे लिए भी डाल दें, कुछ मेरा कमीशन भी थोड़ा सा हिस्सा मिलाते जाना। मेरे लिए भी नक्श लिखें, मेरे लिए भी डालें, मेरी नस्लों के लिए, तस्बीखाने के सारे निजाम के लिए, फितनों से हिफाजत रहे। अल्लाह दाएं बाएं से वुसअत, आफियत, बरकत क़यामत तक। पर काम बड़ा आसान है, मजदूरी कुछ नहीं है, नफा ही नफा है। मजदूरी कुछ नहीं, क्या है? नफा ही नफा है। मजदूरी कुछ नहीं, नफा ही नफा है, खैर ही खैर है, फायदा ही फायदा है, नफा ही नफा है। मैं तो मिन्नत करूंगा, दरखास्त करूंगा, कर ले। तो आज के बाद तावीज लिखना शुरू करेंगे। जाफरान से लिख लें, जर्दे के रंग से लिख लें, खुलने वाली रोशनाई, रूहानी सियाही, इससे लिख लें। नहीं मिलता तो काली स्याही से लिख लें, हो घुलने वाली, पानी लगे और घुल जाए, और वो हर्फ सारे पानी में बह जाएं, और पानी के अंदर जो असरार और रमूज हैं, पानी के अंदर जो कायनात के राज हैं, उन राजों में पानी घुल जाए, उन राजों में पानी घुल जाए, उन राजों में पानी घुल जाए। यकीन जानिए, आप मेरी कैफियत नहीं पूछ सकते। जिस वक्त मैं दरियाए नील में कश्ती में बैठा था, उसकी वीडियो मौजूद है, और मैं दरियाए नील के अंदर तावीज डाल रहा था, आप गुमान नहीं कर सकते। मैं 14 सदियां पीछे निकल गया, और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन का मुझे मंजर सारा याद आया। वो कैफियत ही अजीब थी, अमल भी ताकतवर, पर कैफियत ही अजीब थी। उस कैफियत को मैं नहीं बता सकता। जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है, वो किस दिल को पता है। आले रसूल की जिंदगी में ये राज थे। हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनकी जिंदगी में ये राज थे। ये अल्लाह के नेक बंदे, मेरे हुजूर की आल ने इस राज को पहचाना, इस राज को पाया। उनकी जिंदगी में हमें बहुत कायनात मिलती है, उनकी जिंदगी से हमें बहुत नेमतें, सादतें, बरकतें मिलती हैं। अल्लाह उन्हें अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर दे। हुजूर के घराने को शान के मुताबिक जज़ाए खैर दे। अच्छा चलो ये बताएं, आप में से इस सीजन में जामन किसने खाए हैं? बस। और बाहर के खाने किसने खाए? हाथ ना खड़ा करना, ये हाथ खड़ा ना कर। अगर इस मौसम में जामन नहीं खाए, अब आप कहोगे मेरे जामन बाहर बिक रहे हैं। वो मैंने वाकया नहीं सुनाया था, एक बंदे ने जाके कहा, पता नहीं मैंने किस चीज का तस्करा किया, उसने कहा तेरे पीर के बाहर बिक रहे होंगे इसलिए कहा। उसने कहा बाहर नहीं है, कह रहे ना मैं मानू ना। अच्छा वो भी सच्चा है, वो बाबा भी सच्चा है, उसने सारी उम्र पीरी मुझ जैसे देखे, वो क्या करे। जामन नहीं खाए ना जिसने, तो उसने अपनी हड्डियां नहीं बचाई, उसने अपना दिमाग नहीं बचाया, उसने अपना दिल नहीं बचाया, उसने अपने घुटने नहीं बचाए, उसने अपने मेदे की जलन तेजाबियत नहीं बचाई, और उसने अपने जिगर को हेपेटाइटिस से, जिगर के कैंसर से और खून के कैंसर से अपने आप को नहीं बचाया। मैंने मुख्तसर का, जिसने जामन नहीं खाए। और अपने बच्चों को अगर जामन नहीं खिलाया और नहीं खिलाया, तो समझ लें कि वो ये चाहते हैं ये बच्चे कुछ अरसे के बाद इनकी आंखें खत्म हो जाएं, इनकी याददाश्तें खत्म हो जाएं, इनका जिस्म ढल जाए और इनके जिस्म की कुव्वतें खत्म हो जाएं, जिसने जामन नहीं खाया। जामन नहीं खाया। और जामन को ज्यादा नमक ना लगाना, उसकी असली ताकत को बाकी रखना। और जामन हमेशा नरम लेना, जिसको आप गला हुआ कहते हैं। याद रखना, दबा हुआ होता है, गला हुआ नहीं होता। गला हुआ वो होता है जिसमें कीड़ा होता है,
दबे हुए और गले हुए में फर्क है। दबा हुआ सस्ता मिलेगा, गला हुआ वो होता है जिसमें कीड़ा होता है, ये दबा हुआ होता है, गला हुआ नहीं होता। जामन खाते ही नहीं। जामन के फायदे, जामन के कमालात, जामन की तासीर, आप ना किसी खरादिये से मैं एक टोटका बताता हूं। मैंने बनाया था, लोहे का बूरा ले आए, बिल्कुल बारीक साफ सुथरा, मिट्टी ना हो उसमें। एक बूरा होता है जो बलदार होता है, एक बिल्कुल बारीक होता है सूजी की तरह, लोहे का बुरादा ले आए, उसे किसी शीशे के चीनी के बर्तन में रखें और उसके अंदर हर मौसम का फल डालते जाएं। जामन है उसको खूब डालें और हिलाते जाएं। आलू बुखारा है वो डाल दें, अनार है उसका रस डाल दें, आम आया उसका रस डाल दें, मूली आई उसका रस डाल दें, गाजर आया उसका रस डाल दें, टमाटर आया उसका रस, यानी उसको पीस के डाल दें, उसके गूदे समेत हर चीज को डाल दें, उसको हिलाते रहें 3 साल तक उसको हर सीजन की हर चीज पिलाएं। कितने साल? 3 साल तक पिलाते रहें हर चीज की, और खूब हिलाते रहें। 3 साल के बाद उसे साये में खुश्क करें, धूप में नहीं, कपड़े पे फैला के या किसी बर्तन पे फैला के। खुश्क करने के बाद उसको बिल्कुल बारीक पीसें और पीसने के बाद उसको तजर्बाती तौर पे देखें क्या उसमें लोहा है। उसका तरीका यह है, पानी के ऊपर उसकी चुटकी डालें, अगर वो तैरती रहे तो लोहा मर गया, क्योंकि लोहा तो लोहा है, एक पल में नीचे जाएगा। पानी में लोहा कभी तैरता है? यह तजर्बाती, आपको एक मैं सन्यासी का टोटका बता रहा हूं, जोगी का। अच्छा, वो अगर तैरता रहे तो लोहा है, आपने उसको सही मेहनत नहीं की, और 3 साल अगर सही मेहनत की, वो लोहा नहीं तैरेगा। उसको बिल्कुल बारीक पीस के उसको आप रख लें। अब उसको चने की दाल के बराबर, किसके बराबर? चने की दाल के बराबर मक्खन के अंदर या मलाई के साथ खाएं या दूध के साथ खाएं, और फिर देखें दिल, दिमाग, पट्टे, आसाब, जिगर की बीमारियां, मैदे की बीमारियां, मसाने की बीमारियां, और कितनी मैं 70 बीमारियों के फायदे बताऊं। वो एक छोटी सी चुटकी, उसके अंदर राज ही राज हैं, साज ही साज हैं, उसके अंदर कायनात ही कायनात है। तो जामन खाया करें, सेहत इसलिए खाया करें, सेहतमंद रहेंगे, और सस्ते खाएं, सेहतमंद रहेंगे। और क्यों सेहतमंद रहेंगे? इस सेहत से मखलूक की खिदमत करेंगे, खालिक की इबादत करेंगे। इस सेहत से क्या करेंगे? मखलूक की और खालिक की इबादत करेंगे। मखलूक, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हर मसलक, हर मजहब, हर फिरका, अल्लाह की मखलूक अल्लाह को बड़ी प्यारी है। मखलूक की खिदमत करेंगे और खालिक की इबादत करेंगे, इसलिए हम सेहत हासिल कर रहे हैं। तो जामन खाया करें, जामन खाया करें अल्लाह वाले। आने वाले मौसम का फल खाया करें, और उस वक्त खाएं जब सस्ता हो जाए, उसका रेट टूट जाए, उस वक्त खाएं। अच्छा, जब सस्ता और रेट टूटेगा, याद रखना वो पका हुआ भी उसी वक्त होगा, असली पका हुआ भी उसी वक्त होगा, बगैर मसालों के। कहां चला गया? जामन में चला गया। अल्लाह अकबर। असल में वो सारे बहाने हैं, और बहाने क्या हैं? बहाने ये हैं कि किसी तरह आपको राहत मिल जाए और मेरा हिस्सा मिल जाए। सारे बहाने यही, आपको राहत मिल जाए और मेरा हिस्सा मिल जाए, असल बहाने ये। अच्छा, एक और बहाना सुन ले। वो बहाना ये है कि मुझे जो है ना चंदा दे, जल्दी कर। और यही धंधा और काम है आजकल मंदा। मुझे कई लोग नीचे जाके पूछते हैं कहां देना है, उनको समझ नहीं आती मेरी बात। मुझे उस दिन कहने लगे, हजरत ये बात जरा एहतियात से करें, लोग पूछते हैं देना कहां है। मैंने कहा वो मेरी बात पूरी सुनते नहीं है, इसलिए पूछते हैं। या तो सो रहे होते हैं या फिर अर्श के साथ तार लगी होती है।
थोड़ी 5 वेले दी साड़ी हर वेले दी। उन्होंने कहा हमारे पीर साहब हैं, एक बंदा आता है पूरे घर में अकेला मैं तस्बीह खाने के साथ हूं, वो कहते हैं अगर पीर के होते हुए नमाज की क्या जरूरत है, बस अल्लाह की मखलूक हर रंग में है। तो हामीम ला युनसरून तस्बीह खाने की मेरी नस्लों की हिफाजत की शर पसंदों से और दाएं बाएं से वुसअत बरकत या हफीज या सलाम जानिसारों का अमल, ये जितने भी अमल हैं ये सारे करें, बहुत तवज्जो से करें और बहुत ध्यान से करें। करेंगे तस्बीह खाने के चंदे को तो नहीं छोड़ेंगे। सूरत तौबा की आखिरी आयत 40 बार सख्त तसव्वुर करके, और मेरा तजर्बा है जो तस्बीह खाना मेरी नस्लों सारे निजाम का तसव्वुर करता है वो लौट के कायनात की ताकतें वापस इसी के साथ उसी ताकत से आती हैं इंशाअल्लाह। और रबीउल अव्वल में खास अमल, खास पैकेज, खास ताकतें, और इंशाअल्लाह इसी एतवार को 1 बजे कराची की दर्स महफिल भी है। और इसमें आजम का दम 11 अगस्त बरोज एतवार बाद नमाज फजर होगा, इसमें आजम का दम। और आमिल कामिल बनने के लिए सफर जो आ रहा है, मुहर्रम के बाद सफर आ रहा है, सफर की सातों का इंतजार करें हिज़्बुल बाहर के चिल्ले के लिए। यह वाहिद तस्बीह खाना है जो हिज़्बुल बाहर के चिल्ले के पैसे नहीं लेता, हर जगह बाकायदा पैसे लिए जाते हैं, बाकायदा बुकिंग होती है निजाम की, नहीं लेता। और हिज़्बुल बाहर और रूहानी क्लास भी। और मेरे हाथ का लिखा हुआ नक्श आ रहा है अगस्त के महीने में, अभी इसी अगस्त के महीने में हिज़्बुल बाहर का एक नक्श आ रहा है, बड़ा ताकतवर, बहुत ताकतवर, साथ उसकी चाल भी दी जा रही है। तो उस नक्श को आप फैलाएं भी, खुद भी लें, उसको बहुत फायदा उसका हासिल करें। और सफर के महीने में सूरत कुरैश का अमल बताया करता हूं, जो दुनिया का किसी मुश्किल का, परेशानी का, दुख का, हालात का मारा है, 40 बार 70 बार या 1.25 लाख सूरत कुरैश पूरी करें। और 12 रबीउल अव्वल की इसकी इख्तितामी दुआ होगी। और 12 रबीउल अव्वल में इस अमल का हदिया यही है कि खुद आके अपने हाथों से चीजें बांटें, खुद बांटें इंशाअल्लाह। और जुमेरात को जो 24 नवंबर को 1.25 अरब दरूद पाक का चिल्ला होगा, उसमें अभी से अपनी कापियां लिखनी शुरू कर दें। कोई आजमूदा नक्श, कोई अमल, कोई घरेलू उलझनों के लिए नक्श, कोई शादियों के लिए कोई तावीज, कोई अमल या कोई और अमल, कोई और दम, ये चीजें सीने के राज तफसील से, वजाहत से लिखें, बहुत वजाहत से लिखें। और वो कापी लाएं, कुरानदाजी होगी और उसके ऊपर इंशाल्लाह टोकन मिलेंगे। पार्किंग में तामुन करें, हमारे माशाल्लाह पार्किंग वाले, पुलिस वाले बहुत शफकत करते हैं, मेहरबानी करते हैं, पार्किंग को बहुत संभालते हैं, क्योंकि मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के हकूक हैं और सब यहाँ रहते हैं। सोया व नसीब अगर जगाना चाहते हैं तो हर हफ्ते 3 दिन तस्बीह खाने में गुजारें, जुमेरात से एतवार तक, जुमेरात की असर से एतवार की जोहर तक। और यहाँ इबादत और खिदमत के लिए बूढ़े हैं या जवान, अपनी जिंदगियां वक्त करें इबादत और खिदमत के लिए, तस्बीह खाने में अपनी जिंदगियां वक्त करें या अपनी नस्लों को वक्त करें तस्बीह खाने में। और अगर आप बैठे बैठाए घर मालदार बनना चाहते हैं, फौरन मालदार बनना चाहते हैं बैठे बैठाए, तो एक सिर्फ छोटा सा अमल बताता हूं कि अपने मोबाइल पे, लोगों के मोबाइल पे आपकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं, आप लोगों को खैर पहुंचाएं, अल्लाह गैब से आपके लिए सच्ची राहें और सच्चे रास्ते खोलेगा। बाज लोग नावाकफियत की बुनियाद पे कहते हैं कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात नजर बद नहीं होता, हमें होता है। हमने अब तक 1100 के करीब लिंक्स इकट्ठे कर लिए अंग्रेजों की किताबों के, ये जादू जिन्नात नजर बद उन पे हुआ और फिर उनके क्या हालात हुए, उन्होंने अपने हालात खुद लिखे हैं। ये अबकरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जादुई लाइब्रेरी में, अबकरी की साइट पे। कुछ मुखलिसीन ऐसे हैं जो तस्बीह खाना, हजवेरी महल, रूहानी मंजिल, गोशा दरूद सलाम, हवेली की तारीख लिख रहे हैं। वो तारीख लिखने में अपनी मेहनत बढ़ाएं, तवज्जो बढ़ाएं, जूते अपने इस्तेमाल करें, बाज़ औक़ात जूतों से भी कोई चीज लग जाती है। और इसलिए दूसरा, अपनी मर्जी की अंगूठियां नहीं पहने, बाज़ औक़ात तो उनका असर उल्टा पड़ जाता है। ख़वातीन बच्चों की हौसला अफजाई करें, हमारी नस्लें हैं, इनकी टाफियां, बिस्किट, खिलौने इन्हें दिया करें, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें, हौसला अफजाई करें इंशाअल्लाह।
पूरी दुनिया के लोग मेरे वालिदैन के मज़ारात पर अमाल का हदिया लेके जाते हैं, जरूर जाएं, और अमाल की बरकत से उनकी मुरादें पूरी होती हैं, लेकिन गैर शरई कैफियत से बचें। और हवेली में जब से ईद के तीसरे और चौथे दिन 129 दफा सूरत कौसर का चिल्ला हुआ है, वो अल्लाह की बारगाह में ऐसा कबूल हुआ है कि जो भी बंदा वहां चंद दिन रह के सूरत कौसर के 129 के जितने भी निसाब पढ़ता है, अल्लाह गैब से उसके काम बनाता है। हवेली में मैंने बहुत तजर्बे हैं। ईद के ये 2000 कौन सी ईद थी, 2024 की ईद के तीसरे चौथे दिन, और इंशाल्लाह आइंदा भी 2024-25 की ईद होगी, उसके ईद के ईद उल फित्र रोजों के बाद इंशाल्लाह फिर वही चिल्ला होगा ईद के तीसरे चौथे दिन। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। इंशाल्लाह खैरें होंगी, बरकतें होंगी। मेरी इरादा है कि भावल नगर के साथ जंड वाला वहाँ रूहानी महफिल 28 अक्टूबर पीर सुबह 11 बजे, और तौसा शरीफ मेरी हाजिरी हजरत शाह सुलेमान तौसवी के मज़ार पर आमाल का हदिया लेकर जाने का इरादा है 29 अक्टूबर मंगल सुबह 9 बजे। और दूसरी चीज़ ये है, जनरेटर का लोड हमारी बढ़ने की वजह से जनरेटर जो है हमारे छोटे नाकाफी हो गए हैं। आप मुझे मालूमात दें, 2-3 बड़े जनरेटर हैवी चाहिए। मुझे मालूमात दें कि क्या इसकी तरतीब है, कहाँ से कैसे मिलते हैं। इसका लोड ख़त्म हो गया है। लोड बढ़ने से जनरेटर ने लोड उठाना छोड़ दिया है और बहुत बहुत मसाइल हो रहे हैं। और अबकरी का स्टिकर अपनी गाड़ियों पे जगह जगह लगाएं ताकि लोग अबकरी के खैर को पहुंचे। दरूद पाक पढ़ें मेरे साथ तवज्जो से, और यह दरूद शिफा है रूहानी जिस्मानी बीमारियों, दुखों, तकलीफों, मुश्किलों, मसाइल के लिए। और जिसने भी पढ़ा खैर पाई, और सोचें इतना बड़ा मजमा पढ़ेगा तो कैसे ना खैर मिलेगी। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिआदत कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिआदत कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिआदत कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अब ये दरूद भी और जितने नफली अमाल हैं पूरी उम्मत को हदिया करें, मरहूमीन को हदिया करें, और अपने मरहूमीन को ना भूला करें, उनकी कब्रों को ना भूला करें, उनको सवाब बख्शना ना भूला करें, ना भूला करें। जो हजरात पहले से बैत हैं वो तजदीद बैत करेंगे, और जो बैत होना चाहते हैं मेरे साथ बैत के कलिमात पढ़ते जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, मैंने तौबा की शिर्क बिदअत से, सगीरा कबीरा गुनाहों से, तेरी हर नाफरमानी से। अहद किया तेरा हुक्म और तेरे हबीब के तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा। या अल्लाह, मेरे अहद को कबूल फरमा। बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे। या अल्लाह, मेरी बैत को कबूल फरमा। अब पहले जिक्र खास होगा। ये वो जिक्र है आज तक जिसने किया, जिस मुराद के लिए किया, डूब के किया, अल्लाह उसकी मुराद पूरी करता है। कोई मुराद आप दिल में लाए हैं, कोई मुश्किल लाए हैं, कोई परेशानी लाए हैं, इस जिक्र को बैठ के करेंगे, फिर इसके वसीले से दुआ मांगेंगे, हमेशा दुआएं कबूल, बरकतें हासिल, रहमतें मिलती हैं, अताएं मिलती हैं और खैरें मिलती हैं हमेशा। और दुआएं रद्द नहीं होती इसको डूब कर पढ़ने से। तवज्जो से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب اللہم صلی علی محمد لا الہ الا انت سبحانک اللہم صلی علی محمد یا اللہ یا عزیز یا وہاب یا کریم یا حی یا قیوم حسبی اللہ ونعم اللہم یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا کافی المحمات یا شافی الامراض یا منزل البرکات یا رافع الدرجات یا مسبب الاسباب یا مجیب الدعوات یا امان الخائفین یا خیر الناصرین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اغثنا یا مفرح المحزونین رب انی مغلوب فانتصر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الی یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد آمین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ابھی اس میں ذات کا ذکر ہوگا، پورے جذبے سے باواز بلند، پورے جذبے سے باواز بلند، پورے دل کی کیفیتوں سے باواز بلند یہ ہم نے ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور دعا ہے۔